سزائے موت کے قیدی محمد انور کی کہانی جو تختہ دار تک پہنچنے کے بعد رہا ہوئے۔ یہ ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی کی موت کی کال کوٹڑی ہے۔ 6 بائی 8 فٹ کے اس سیل میں قتل کے مجرم چودھری محمد انور کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ یہ انور کی زندگی کا آخری دن ہونا تھا۔ چند گھنٹوں بعد انہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ ان کی اپنے اہل خانہ سے آخری ملاقات ہو چکی ہے۔ جیل ڈاکٹر پھانسی کے پھندے کی تیاری کے لیے چودھری محمد انور کے گلے اور قد کا ناپ لے چکے ہیں۔ زندگی کے آخری مراحل میں ان کی آنکھوں کے سامنے تمام زندگی ایک فلم کی طرح چل رہی ہے۔ ایسے میں جیل عملے کا ایک رکن کوٹھری کے باہر آیا تو انہیں لگا کہ اب پھانسی کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ ہائی کورٹ میں دائر ان کی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ انور کی پھانسی روک دی جاتی ہے۔ ٹھیک 6 سال بعد پاکستان کی سپریم کورٹ محمد انور کی رہائی کا حکم جاری کرتی ہے اور وہ 28 سال سلاخوں کے پیچھے گزارنے کے بعد جیل سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ انور کی زندگی کی کہانی ہے۔ 1993 کی بات ہے۔ ضلع وہاڑی کی تحصیل بورے والا کے نوجوان محمد انور 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ ان کے والد زمیندار تھے اور انور اسکول کے بعد کھیتوں میں والد کی مدد کیا کرتے تھے۔ انور کے بڑے بھائی کی گاؤں کے کچھ لوگوں سے ذاتی دشمنی تھی جس کی لپیٹ میں وہ بھی آ گئے۔ انور بتاتے ہیں کہ یہ چودراہٹ کا معاملہ تھا۔ وہ لوگ خود کو چودھری سمجھتے تھے اور میرا بھائی بھی اپنے آپ کو چودھری سمجھتا تھا۔ پھر ایک دن وہ لوگ میرے بھائی کو مارنے کے لیے گھر تک آ گئے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو خوف زدہ ہو گیا، بکھلاہٹ میں اندر گیا اور اسی بھائی کا پستول لا کر گھر کے اندر سے فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں 2 لوگ زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک 28 دن بعد ہلاک ہو گیا۔ محمد انور کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک غیر ارادی قتل تھا جو اپنے دفاع میں کیا گیا۔ ایک انسانی جان کے ضیاع پر وہ آج بھی نادم ہیں اور قتل ہونے والے شخص کے خاندان سے معافی کے طلبگار ہیں۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد محمد انور کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور نہ ختم ہونے والی مشکلات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ سال ہر سال پیشیاں بھگتنے کے بعد 1998 میں سیشن جج نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ مجھے سینٹرل جیل ملتان کی موت کی کال کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ وہاں اور بھی قیدی تھے۔ 4 5 قیدی ایک سیل میں ہوتے تھے۔ یہ 6 بائی 8 فٹ کا کمرہ تھا۔ وہیں ہمیں کھانا ملتا تھا اور وہیں ٹوائلٹ کا انتظام بھی تھا۔ انور کے بقول سزائے موت کے قیدیوں کی حالت زار کا اندازہ لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ان قیدیوں کے سر پر ہر وقت موت کی تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ آدمی قتل تو ایک بار کر بیٹھتا ہے لیکن اس کوٹھری میں روز مرتا ہے۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ میرا کیا بنے گا۔ گھر والوں کا خیال آتا تھا کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ کبھی کبھی ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ ان حالات میں کچھ قیدی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ بندہ سوچتا تو ہے کہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے لیکن وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق دنیا کے 108 ممالک میں سزائے موت پر مکمل پابندی ہے، جبکہ 28 ممالک میں موت کی سزا تو موجود ہے لیکن اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ صرف 55 ممالک ایسے ہیں جہاں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں سماجی تنظیمیں سزائے موت کی مخالف ہیں اور اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتی ہیں۔ پاکستان میں 2008 سے 2014 تک موت کی سزا پر پابندی عائد تھی۔ پاکستانی قانون میں 33 ایسے جرائم ہیں جن میں سزائے موت دی جا سکتی ہے، لیکن قانونی ماہرین کے مطابق ان میں سے صرف چند ہی جرائم ایسے ہیں جن میں عدالتیں موت کی سزا دیتی ہیں، مثلا قتل یا توہین مذہب۔ سماجی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان JPP سے وابستہ وکیل ثنا سمجھتی ہیں کہ قوانین میں ترمیم کر کے سزائے موت کے حقدار جرائم کی تعداد کم کی جانی چاہیے۔ اس طرح پاکستان میں سزائے موت کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ اگر قوانین پر مکمل عمل کیا جائے اور منصفانہ نظام عدل قائم کیا جائے تو اکثر کیسز میں نوبت سزائے موت تک نہیں جائے گی۔ پاکستان میں سزائے موت کے بعد ایک مرحلہ صدر مملکت سے معافی کا بھی ہوتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے
यहाँ कितने हिफाजती मराहल मौजूद हैं। चौधरी मोहम्मद अनवर गुजरे दिनों की याद ताज़ा करते हुए बताते हैं कि जेल एक अलग ही दुनिया है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ हर वक्त कानून हरकत में रहता है। अगर कैदी सो भी रहा है तो वो कानून का पाबंद है। दिन का आगाज़ नमाज से होता था, फिर हम नाश्ता करते और 1 घंटा टहलाई यानी टहलने के लिए बाहर जाते थे। फिर दोपहर का खाना खाया जाता और शाम में हमें 1 घंटे के लिए दोबारा टहलाई करवाई जाती। जब वक्त मिलता तो काल कोठरी के कैदी एक दूसरे से बातें करते और अपने दुख दर्द बांटते। कुछ लोग तिलावत और इबादत में वक्त गुजारते। अनवर के बकौल सजाए मौत के सेल में कैद लोग बज़ाहिर तो नॉर्मल रहने की कोशिश करते थे, लेकिन जहनी तौर पर हर वक्त परेशान रहते थे। कभी किसी को घर की याद आ गई तो कभी घर वालों की। सबसे मुश्किल मरहला वो होता था जब एक साथी को फांसी देने के लिए ले जाया जाता था। उस वक्त दूसरे कैदियों की हालत गैर होती है। वो खौफज़दा हो जाते हैं कि कल हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। फिर वो इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि 2-2 दिन खाना नहीं खाते। कैद के दौरान मेरे कई दोस्त फांसी चढ़ गए। मुझे आज भी उनकी याद आती है। मोहम्मद अनवर को शायरी का शौक़ तो जेल जाने से पहले ही था, लेकिन कैद में वक्त मिला तो वो खुद भी शेर कहने लगे और सरवत तखल्लुस अख्तियार किया। शाकिर शुजाबादी उनके पसंदीदा शायर हैं। मैंने हर मौजू पर शेर कहे, नातिया अशार लिखे और रोमानवी शायरी भी की। जेल में की गई शायरी का तमाम रिकॉर्ड मेरे पास अब भी महफूज है। मेरा इरादा है कि अपनी नज़मों और गज़लों को एक शेरी मजमूए की शक्ल में शाये करवाऊँ। कैद के दौरान शायरी के साथ साथ अनवर ने मुख्तलिफ अखबारों में कालम भी लिखे। उनका मौक़िफ़ था कि सज़ाए मौत को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफ़ी पर मबनी सज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हकूक़ से मुतालिक कन्वेंशन के मुताबिक 18 वर्ष से कम उम्र बच्चों को सज़ाए मौत और उम्र कैद नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने सन 1990 में इस मुआहदे की तौसीक़ की, जिसके बाद मुल्क में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम आर्डीनेंस पर पेशरफ्त हुई। सन 2000 में इस कानून का इतलाक़ किया गया, जिसके तहत जुर्म के इर्तिकाब के वक्त नाबालिग मुल्ज़मान को सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। उसके बाद सन 2001 में सदारती हुक्मनामे के ज़रिए आर्डीनेंस के इतलाक़ से पहले सज़ाए मौत पाने वाले नाबालिग अफराद की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। इसके बावजूद कई नाबालिग मुजरमान सन 2001 के सदारती हुक्मनामे के बाद भी सज़ाए मौत के मुंतज़र कैदियों की फहरिस्त में मौजूद रहे। कई उम्र कैद की मुद्दत पूरी होने के बावजूद साल हर साल जेलों में रहे और बहुत बाद में समाजी तंजीमों की कोशिशों से रिहा हुए। इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में 3831 कैदी मौत की सज़ा के मुंतज़र हैं। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान JPP के मुताबिक सज़ाए मौत के मुंतज़र इन कैदियों में से कम एक शख्स ऐसा है जो जुर्म के वक्त नाबालिग था। कराची सेंट्रल जेल में कैद मोहम्मद आज़म पर सन 1998 में 17 साल की उम्र में एक शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम है। उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 1998 में सज़ाए मौत सुनाई। उस वक्त उनकी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है, लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक जेलों में कैद नाबालिग मुजरमान की तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के कई इलाकों में अब भी बच्चों की पैदाइश का इंदराज नहीं करवाया जाता। सन 2001 में लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी मोहम्मद अनवर की अपील खारिज कर दी। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम आर्डीनेंस के नफाज के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें मातहत अदालत से रजू करने को कहा गया। इस दौरान सन 2015 में मोहम्मद अनवर के डेथ वारंट जारी हो गए। उनकी अहले खाना से आखिरी मुलाकात करा दी गई और कैद तन्हाई में मुंतकिल कर दिया गया। अनवर को वो रात आज भी याद है। वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। सुबह मुझे फांसी दे दी जानी थी। जेल डॉक्टर ने मेरा नाप ले लिया था, गले और कद की पैमाइश, ताकि उसके मुताबिक फांसी का रस्सा तैयार किया जा सके। सबसे मुश्किल वक्त जो था वो थी आखिरी मुलाकात। जब मेरे अपने मेरी आखिरी मुलाकात के लिए आए, वो क़यामत खेज़ मंजर था। मैं उन्हें आखिरी बार देख रहा था, वो मुझे आखिरी बार देख रहे थे कि शायद सुबह हम एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। ये बहुत मुश्किल वक्त था। आखिरी मुलाकात के दौरान ही मोहम्मद अनवर के भाई ने उन्हें बताया कि वो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और इंसानी हकूक़ की तंजीम जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मदद से हुक्म इम्तनाही की कोशिश कर रहे हैं। बिलाखिर ये कोशिशें रंग लाईं और रात 10:30 बजे अदालत ने सज़ा पर अमल दरामद रोक दिया। इस आखिरी रात के बारे में बाद में मोहम्मद अनवर ने जेल ही में ये शेर कहे, कोई लख्ते
जिगर माँ का, किसी की आँख का तारा, ये दुनिया छोड़ने को है किसी को जान से प्यारा। हाथों में है हथकड़ियाँ और चारों तरफ पहरा है कि तख्ता दार पर चढ़ना मुकद्दर उसका ठहरा है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अदाद शुमार से वाज़ेह है कि सज़ाए मौत से जराइम की शरह में कमी नहीं आती। तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब मुआशरों में सज़ा से ज़्यादा कैदियों की बहाली और उनके मुआशरे में इंज़माम पर तवज्जो दी जाती है। वकील और समाजी कारकुन सना फ़रोह के मुताबिक हमारे यहाँ अक्सर किसी बड़े सानिये के बाद राय अमा में मुजरमों के लिए मौत की सज़ा का मुतालबा शुरू हो जाता है। उसके बाद मुलव्वस अफराद को फांसी दे दी जाती है और अवामी दबाव कम हो जाता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ मौत की सज़ा जराइम का ख़ात्मा नहीं कर सकती। जराइम के असबाब का सुराग लगाकर उन्हें जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। सना फ़रोह बताती हैं कि इसके अलावा सज़ाए मौत के कैदियों के कई कानूनी और समाजी मसाइल भी हैं। मसलन जेलों में दीगर कैदी खुली बैरक्स में कदरे आज़ादाना अंदाज में रहते हैं, लेकिन सज़ाए मौत के कैदी छोटी कोठरियों में इकट्ठे बंद होते हैं। फिर इन लोगों को बाहर की दुनिया बशमूल वकला और घर वालों से राब्ता दीगर कैदियों के मुकाबले में कम होता है। सज़ाए मौत के कैदियों में नफ्सियाती मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। सना कहती हैं कि सज़ाए मौत के अक्सर मुकदमों में कम अज़ कम 10 साल के बाद केस हाई कोर्ट तक पहुँच जाता है, जिसके बाद कानूनी जंग चलती रहती है। तो एक तरह से कैदी उम्र कैद काट चुका होता है, तब कहीं जाकर उसे मौत की सज़ा दी जाती है और फिर सज़ा पर अमल दरामद में भी वक्त लगता है। इस तरह हमारे अदालती निज़ाम में कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। चौधरी मोहम्मद अनवर ने अपनी मौत की सज़ा पर हुक्म इम्तनाही का सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि बस थोड़ी मोहलत मिल गई है और ज़िंदगी चंद दिन और बढ़ गई है। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और गुज़िश्ता साल उन्हें रिहाई मिल गई। अनवर को शिकायत है तो सिर्फ ये कि उन्हें इंसाफ देर से मिला। मैं सन 2001 का नाबालिग साबित हूँ। उस साल मेरा मेडिकल बोर्ड हो चुका था। इस हिसाब से मेरी सज़ा उम्र कैद बनती थी और मुझे बहुत पहले रिहा हो जाना चाहिए था। अब 20 साल बाद इंसाफ मिले तो क्या इंसाफ है। मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। जेल में ही मुझे फालिज और हार्ट अटैक हुआ। अब मेरे जिस्म का बायां हिस्सा काम नहीं करता। मोहम्मद अनवर बताते हैं कि जेल में कैद शख्स तो ज़हनी और जिस्मानी अजियत बर्दाश्त करता ही है, लेकिन साथ साथ उसके घर वाले भी कठिन हालात से गुजरते हैं। जुर्म एक आदमी करता है, सज़ा पूरा ख़ानदान भुगतता है। पहले मेरे वालिदैन केस की पैरवी करते करते दुनिया से चले गए। फिर मेरे 2 भाइयों ने पैरवी शुरू की और वो भी एक एक करके दुनिया से चले गए। ज़मीन जायदाद सब बिक गई और हम मकरूज़ हो गए। मुझे अपने सब प्यारों की मौत का इल्म कई कई दिन बाद हुआ और मैं उनके जनाजों को कंधा भी नहीं दे पाया। लेकिन तमाम मसाइब के बावजूद जेल की याद अब भी मोहम्मद अनवर को चैन से नहीं बैठने देती। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में गुजारने के बाद उन्हें उस जगह से एक ख़ास उन्स पैदा हो गया था। कभी कभी जेल में ऐसा लगता था कि मैं पैदा ही यहाँ हुआ हूँ। रिहाई के बाद जब मैं जेल के दरवाजे से बाहर निकला तो ऐसा लगा कि ये दुनिया पहली बार देख रहा हूँ, ऐसे जैसे एक बच्चा पैदा होता है। जब मैं जेल में गया था तो ना मोबाइल फ़ोन थे और ना ही जदीद अंदाज की गाड़ियाँ और ना ही इंटरनेट। ये सब मेरे लिए नया है। जेल से छूटने के बाद अनवर सबसे पहले अपने बड़े भाई के घर गए जो उनकी रिहाई से चंद माह पहले फौत हो गए थे। भाई के बच्चों ने मेरा इस्तकबाल किया। वो एक बहुत जज्बाती मरहला था। खुशी तो थी रिहाई की, लेकिन दुख भी था कि भाई चले गए। वालिदैन और भाइयों की कब्र पर जाकर फातिहा भी पढ़ी। फिर मेरे पुराने दोस्त भी मिलने आए। कुछ मुझे पहचान न सके और कुछ को मैंने बड़ी मुश्किल से पहचाना। मेरे जेल के साथी जो मुझसे पहले रिहा हो गए थे वो भी मिलने आए तो हमने जेल की यादें ताज़ा की। फिर मैं जेल भी गया उन दोस्तों की मुलाकात पर जो अब तक कैद हैं। लेकिन रह रहकर मोहम्मद अनवर को दुख यही खाए जाता है कि उनकी तमाम जिंदगी जेल में ही गुजर गई। वो बचपन में जेल गए और अब बूढ़े होकर बाहर आए हैं। वो अपने पास आने वाले मिलने वालों को अपना ये शेर सुनाना कभी नहीं भूलते। समंदर दी जोशे तूफानी नहीं वेखी, मैं आप ही अपनी जवानी नहीं वेखी।